لاہور پر فضائی آلودگی کی چادر تن گئی، زہریلے بادلوں میں لپٹی فضا نے سانسوں کو بھی آلودہ کر دیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 250 تک پہنچ گیا۔ ظہور الہی روڈ آلودہ ترین قرار، بیشتر علاقوں کا AQI 600 کے قریب ریکارڈ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں ماحولیاتی آلودگی کیس، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ درخت جھکا ہوا ہے، کسی بھی وقت نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر کام مکمل کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات پر زور، محکمہ جات کی ذمہ داریوں پر بحث، متعلقہ محکموں کو نوٹس۔ پنجاب حکومت کا داتا دربار اور بھاٹی گیٹ ری ویمپنگ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے منصوبے کے باعث پھیلنے والی آلودگی کو قابو کرنے کے لیے کمر کس لی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحولیات علی اعجاز کا کہنا ہے تمام SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ جو بھی پروجیکٹ کیے جاتے ہیں پہلے ان کی ایک انوائرمنٹل اسٹڈی کی جاتی ہے جسے انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا جائے گا تو یقینی طور پہ اس کی انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کی جائے گی، جس میں اس کے تمام انوائرمنٹل پہلوؤں پہ جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو ایک اپروول بنانا۔ داتا دربار، بھاٹی گیٹ اور موہنی روڈ کی ریماڈلنگ کا منصوبہ۔ بھاٹی گیٹ کے سامنے دکانوں کو گرانے کے لیے نشان لگا دیا گیا۔ متاثرہ دکاندار خوفزدہ، اپنی ملکیت کے تحفظ اور متبادل جگہ یا رقم کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ منصوبے کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے۔ ابھی تو ہمیں کوئی وہ ڈیسیزن نہیں بتا رہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ابھی نشاندہی کر رہے ہیں، پیمائشیں کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں ہمیں بتا رہے کہ آپ کو کوئی ہم جگہ دیں گے متبادل یا کوئی پیسے دیں گے، کچھ دیں گے۔ ابھی یہی ہے، ہمیں اگر نقشے میں دیکھا جائے تو ہم نقشے میں سیف ہیں، پیچھے پارک ہے اور آگے ہماری یہ دکانیں ہیں، یہ ہم سیف ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آ کے یہ 1-2 دن پہلے وہ پھر پیمائشیں کر کے گئے ہیں اور اس کے متبادل ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ بھاٹی گیٹ داتا دربار کی ریماڈلنگ اور توسیعی منصوبہ، دکانداروں نے حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ کہا روزگار بچانا ضروری ہے، ہم دوبارہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، جو دکانیں تھیں وہ مسمار کر دی گئیں، حکومت فوری مدد اور متبادل فراہمی کرے۔ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 149 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, 1500 ਘਰਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। DCO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਵਿਹਲੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ کے روٹی کماؤ ਤੇ کھاؤ۔ DG LDA طاہر فاروق کی ہدایت پر ٹیمیں متحرک، علامہ اقبال ٹاؤن کے خیبر اور رچنا بلاک میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی۔ LDA ملکیتی 5 کمرشل پلاٹس واگزار، تعمیرات مسمار، دیگر زونز میں 28 املاک مسمار کر دی گئی۔ لاہور میں سوئی گیس نیو کنیکشن کے لیے عمل سست، شہری پریشان، مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول، ہزاروں زیر التواء۔ مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم انڈسٹری نے 16 نومبر سے ڈیزل فی لیٹر 9 روپے 60 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز دے دی۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپیہ 96 پیسے کمی کا امکان۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ مہنگائی نے صارفین سے چکن چھین لیا، برائلر گوشت 7 روپے مہنگا، 533 روپے کلو ہو گیا۔ فارمی انڈے 345 روپے درجن سے نیچے نہ آ سکے، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,200 روپے تک کی ہو گئی۔ کیا پکائیں کیا کھائیں، شہری دہائی دینے لگے۔ سرکاری نرخ نامے میں متعدد سبزیاں مہنگی، پیاز 130، ٹماٹر 105 روپے کلو مقرر، شملہ مرچ 270، مٹر 220، گاجر چائنا 180، ٹینڈے 150 روپے کلو میں دستیاب۔ مافیاز نے بھی شہریوں کو پریشانی سے دوچار کر دیا۔ مہنگائی نے پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی، رہی صحیح کسر مہنگائی مافیا نے نکال دی۔ شہریوں کی قوت خرید متاثر، انار دانے دار 950، انگور 405،
और सेब 365 रुपए किलो हो गया। पपीता 277, अमरूद 175 और शकरकंदी 95 रुपए किलो हो गई। बदामी बाग में जाली शहद का मकरू धंधा पकड़ा गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 200 लीटर जाली शहद केमिकल्स और जब्त कर लिए गए मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि शहद में मिलावट इंसानी सेहत के लिए खतरनाक, आवाम से रिपोर्ट करने की अपील की। फैसल चौक मार रोड पर नबीना अफराद का 5वां रोज धरना। ट्रैफिक और शहरियों की मुश्किलात मुजाहिरीन हक के तलाश में कहते हैं हुकूमत ने गुज़श्ता साल के वादे पूरे नहीं किए, हम पढ़े लिखे हैं, बेकारी नहीं। वज़ीर आला से रोज़गार और इज़्ज़त व वक़ार के साथ मौक़े फ़राहम करने की अपील। सबसे पहले तो ये है कि हम 11 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और 11 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमें हर बार 3 महीने के आर्डर दे के भेज दिया जाता है। हमारे वेल क्वालिफाइड लोग हैं, एमफिल पढ़े हुए लोग हमारे पास बैठे हैं, एमए पढ़े लोग हैं। हम सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि हमारी 3000 से ज़्यादा सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, आप उनको एडवर्टाइज़ करें और इन लोगों को अकोमोडेट करें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नाबीना अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। 5000 मुस्तहिकीन को माहाना 12000 रुपये वजीफ़ा देने का अमल तेज़। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत बट की ज़रिए सदरत इजलास। आला तालीम याफ्ता बेरोज़गार नाबीना अफराद को तरजीह देने का ऐलान। हुकूमत पंजाब की ख़ुसूसी तवज्जो अवामी फलाह पर मरकूज़। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में नौजवान मुहक्किकीन और तलबा की दिलचस्पी बढ़ गई। लम्स कंसल्टेंसी ग्रुप प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक करेगा। वफामती याददाश्त पर दस्तखत। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की शिरकत। अकेडमिया और हुकूमत के इश्तराक से सस्ती रहायश में जिद्दत लाई जाएगी। अताउल्लाह मुस्तफ़ा जमील और साथियों का पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने का ऐलान। पार्टी के मंशूर पर अमल करने और अवाम की फलाह के लिए काम करने का अज़म जाहिर किया। कहा कि पार्टी अवाम, मजदूर और पिसे हुए तबकात की आवाज़ है। गवर्नर पंजाब ने नए वर्कर्स का इस्तकबाल भी किया। चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब का इजलास। तंजीम साजी और अहदाफ तय। अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों को अवामी राबत और मसाइल हल करने की हदायत। हर शोबा मुतहर्रिक और मजबूत बनाने का अज़्म। कहा पार्टी कारकुनों और अवाम के दरमियान कुर्बत को तरजीह दी जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का दौरा। आलमी मयार की लेबॉर्ट्रीज में टेस्टों का मुशाहिदा। नई तामीर शुदा जिम, कैफेटेरिया और डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। नौजवान साइंसदानों से मुलाकात भी की। पेफ्टा मेंबरान और टेक्निकल कमेटी इजलास में कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ज़रूरी तरक्की के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की हिदायत भी की। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मजबूत बनाने का अज़्म। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ बट की ज़ेर सदारत इजलास। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और बहाली के निज़ाम पर जोर दिया। कम्यूनिटी इंगेजमेंट मजबूत बनाने पर इत्फाक। मेडिको लीगल सहूलियात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। लाहौर हाईकोर्ट में 3 साल पुरानी तामीराती अदायगी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने सरकारी वकील को रिपोर्ट करने की मोहलत दे दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 1 करोड़ से ज़ायद की रकम अदा नहीं हुई। अदालत महकमे को रकम की अदायगी का हुक्म दे। जज ने एहतजाज को जमहूरी हक करार दिया। लाहौर हाईकोर्ट में सब रजिस्ट्रार की अबूरी जमानत केस की समाअत। अदालत ने 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने पर जमानत मंजूर कर ली। शरीक मुलजिम पहले से जमानत पर एंटी करप्शन की सियासी बुनियादों पर इल्जामात की तरदीद। जस्टिस राजा गजनफर अली खान ने खातून मुलजिमा की दरख्वास्त कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। रायवंड में आलमी सालाना तबीकी इज्तिमा के आखिरी रोज़ पंडाल में उलमा मदुबीन की बड़ी तादाद मौजूद। पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी, सेफ सिटी और CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब मुमताज़ ने कंट्रोल रूम का दौरा करके इंतजामात का तफसीली जायजा भी लिया। पंजाब पुलिस में पेशा वराना एजाज़।
सेंट्रल पुलिस ऑफिस में 38 अफसरान को इंस्पेक्टर रैंक तफवीज़ कर दिए गए। आईजी पंजाब ने शाबाश दी। रवां साल 1047 और पौने 3 साल में 3456 अफसरान को तरक्की दी गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पीएमएस कामयाबी की खुशी। आईजी पंजाब ने बदरुद्दीन शहरियार और समीउद्दीन शहरोज को मुबारकबाद दी। दोनों नौजवान आला तालीम याफ्ता 85वीं और 59वीं पोजीशन हासिल की। आईजी पंजाब ने बच्चों को आला तालीम और खिदमत खल्क के लिए मशले राह करार दिया। यूईटी जिम्मेदार और मिसाली यूनिवर्सिटी के तौर पर नुमाया। एचईसी ने यूईटी को पाकिस्तान की बेहतरीन जामिया करार दे दिया। गुड गवर्नेंस, शफाफ माली पॉलिसियाँ और इंतजामी नज़्म ज़ब्त की तारीफ। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर की बेहतरीन क़यादत को सराहा गया। दीगर जामियात के लिए इंतजामी मॉडल काबिल तनकीद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद आगाही फैलाना है। तिबी तहकीक के मुताबिक रोज़ाना 30 मिनट एरोबिक वर्जिश ब्लड ग्लूकोज बेहतर करती है और इंसुलिन की हसासियत बढ़ाती है, जिससे ज़ियाबतीज़ टाइप 2 के ख़तरे को कम किया जा सकता है। ज़ियाबतीज़ खामोश दुश्मन, एहतियात और नज़्म ज़िंदगी से काबू मुमकिन है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ का ज़ियाबतीज़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि टाइप 1 बच्चों को इंसुलिन किट घर पहुँचाई जा रही है और सरकारी हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई गई है। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम सऊदी अरब रवाना। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नेशनल जेवलिन गोल्ड मेडलिस्ट यासिर सुल्तान और कोच सलमान इकबाल बट भी टीम में शामिल हैं। 17 नवंबर को जेवलिन इवेंट में एक्शन। पाकिस्तान की उम्मीदें वाबस्ता, शायकीन में जोश खरोश। पंजाब के खिलाड़ी नेशनल गेम में शानदार कारकर्दगी के लिए तैयार। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजरा अफजल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास कैंप्स ट्रायल के टीमों की रवानगी और मुकम्मल इंतजामात का जायजा लिया गया। 24 नवंबर से नश्तर पार्क कम्प्लेक्स में तरबियती कैंप्स शुरू होंगे।